Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the online classes. In the previous lesson, we did all the reading and the explanation of the unit in a tunnel, and now we will start the written work in your copies. So, students, please open your copies and start writing the lesson outline. For this, first of all, you have to write the date according to the pattern of your school, that is Wednesday, December 16, 2020. Write this date according to this pattern. Then to write topic in a tunnel, focus, lesson outline. You have to double underline topic and focus. Then you write dictation words, words meanings, word sentences, and question answers. And then you draw the end lines. You can pause the video if you want to write it, but you have to mention the margin lines and the end lines properly. Then in another page, next page you write again the date Wednesday, December 16, 2020. Lesson in a tunnel, focus, dictation words, and you have to double underline it. Then you write the dictation words. There are 5 dictation words. First one is recess. RECESS. रिसेस का मतलब होता है वक्फा, बीच में जो हम जिस चीज़ को रोकते हैं उसको रिसेस कहते हैं. नेक्स्ट वन इज हेजेस. HEDGES. हेजेस. हेजेस का मतलब है जो क्यारियाँ और पौधे जो बीच में आपको नज़र आते हैं गुजरते हुए टनल में से, तो साइड पे जो क्यारियाँ लगी होती हैं उनको हेजेस कहते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3 साइलेंस. साइलेंस का मतलब होता है खामोशी. SILENCE. साइलेंस. इसके बाद फोर्थ वन इज ट्रेम्बल. TREMBLE. ट्रेम्बल. ट्रेम्बल का मतलब होता है लरजना. नेक्स्ट वन इज नंबर 5 ग्रेजुअली. GRADUALLY. ग्रेजुअली. ग्रेजुअली का मतलब होता है रफ्ता रफ्ता, यानी स्लोली एंड ग्रेजुअली. तो स्टूडेंट्स, these are the 5 words. You write it in your neat copies. You have to mention the date, the lesson, focus, and the dictation words. And then you have to draw the end line as well. After this, we will write in the next page, you will write the date Wednesday, December 16, 2020. Then you write topic, focus, lesson in a tunnel, focus, word meanings. You have to double underline both of these. Then you write words meanings. Now your first word is oozy. 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 स्लो फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी जब लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता जब गुजरता है उसको कहते हैं स्लो फ्लो ऑफ लिक्विड. ठीक है. सेकेंड वन इज थ्रेड. थ्रेड किसको कहते हैं? वॉकिंग को, यानी चलने के अंदाज को थ्रेड कहते हैं. जब आप कहीं से गुजर रहे होते हैं तो जब आप उधर से गुजरते हैं उस जगह को आपके चलने को कहते हैं थ्रेड. थर्ड वन इज ग्रेज. ग्रेज टू ब्रेक द स्किन, यानी आप किसी भी तरह से अपनी स्किन को उतारते हैं खींच के, तो ऊपर से जो उतरती है उसको कहते हैं ग्रेजिंग, यानी उतरना. नेक्स्ट वन इज वॉल्टेड. वॉल्टेड का क्या मतलब है? फॉर्म्ड इनटू एन आर्क रूफ, यानी जब आप टनल में से गुजरते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं ऐसे आर्क की तरह से यूं करके, आर्क की तरह जो छत की शेप आती है
वो बिल्कुल वॉल्ट, वॉल्ट का मतलब होती है उस संदूक की तरह होती है जिसमें पुराने ज़माने में ख़जाने को या किसी भी पैसे की चीज़ को रखा जाता था। तो वॉल्टेड का मतलब है इस तरह से उस संदूक की तरह से छत को आर्क किया हुआ, यानी आर्क का मतलब है यू, आर्क शेप में, यू शेप में ये है। नेक्स्ट वन इज recess, 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 a small space set back in a wall, यानी एक छोटा सा रास्ता जो कि दीवार के अंदर आपने बनाया हुआ होता है, यानी दो दीवारों के बीच में थोड़ा सा गैप जो आ जाता है उसको हम कहते हैं recess. So my dear students, you write all these words meanings in your neat copies, neat and clean, and then you have to underline. Then the next page is word sentences. For this, again you write your date, Wednesday, December 16, 2020. You write your topic, you write your focus in the same pattern you always do in your classes. Underline it. Then you write word sentences. Your first sentence is darkness. Darkness का मतलब होता है अंधेरा. The thief disappeared in the darkness of the night. यानी चोर जो था वो अंधेरे में गायब हो गया. इसी तरह आप इससे मिलता जुलता कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट वन इज क्लाउडी. क्लाउडी का क्या मतलब होता है बादल, यानी मौसम आज आज बादल है, आज धूप निकली हुई है, सनी उसको कहते हैं, रेनी बारिश को कहते हैं. इसी तरह क्लाउडी जो है वो बादल वाले मौसम को कहते हैं जब आसमान पे बादल आए हों. तो इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे आई लाइक क्लाउडी वेदर, मुझे जो है बादलों वाला मौसम पसंद है जिस वक्त आसमान पे बादल छाए होते हैं. थर्ड, साउंड. साउंड का मतलब होता है आवाज़. आई लाइक द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, मुझे बारिश के कतरों की आवाज़ पसंद है. इसके अलावा आप कुछ भी कह सकते हैं और डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस इसमें आप ऐड कर सकते हैं. विंडो. विंडो का मतलब होता है खिड़की. देयर इज़ अ लार्ज विंडो इन माई रूम, मेरे कमरे में एक बड़ी सी खिड़की है. नेक्स्ट, ऑलवेज. ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा. वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स, यू एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल राइट द एंड लाइन्स and your work should be neat and clean. So inshallah I will check your work in the class. I hope you have fully understand the lecture. Thank you. Allah Hafiz.